Hello everyone. In this session we will discuss our next topic, that is spermatogenesis. So in spermatogenesis basically we will see how the sperms they are formed. सबसे पहले हमारे पास primordial germ cells थे, ठीक है. Primordial germ cells they will form the sperm mother cell and sperm mother cell से हमारे पास finally sperm formation होगी. This entire process is called as the spermatogenesis, right? Now where this process takes place, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस प्रेजेंट होंगी उनके अंदर जब हम ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, इन दैट द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस विल टेक प्लेस एंड इट विल बिगिन एट इन 3 हमारा दैट इज द प्रोलिफरेटिव फेज. इसे हम मल्टीप्लिकेटिव फेज भी बोलते हैं. इस फेज में क्या होगा, सिंपल हमारे जो स्पर्म स्टेम सेल्स होंगे वो बोलते हैं दे विल इंक्रीज बाय माइटोसिस. मेन थिंग इज यहाँ पे सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होगी, देयर विल बी नो मियोसिस इन दिस फेज. ओनली द सेल्स, द स्पर्म मदर सेल्स, दे इंक्रीज देयर नंबर बाय द माइटोटिक डिविजन्स. 2 meiosis will take place, meiosis 1 and the meiosis 2, and we will have in last the haploid state, that is the spermatid. It is basically the shaping stage. यहाँ पे क्या होगा, आपके जो पिछली फेज में spermatid हैं which are basically round cells, they get converted into streamline. So basically the conversion of the spermatid into sperm is called as the spermiogenesis, and this is our third step, that is the post meiotic phase. अब हम वन बाय वन इन तीनों फेसेस को डिस्कस करेंगे. फर्स्टली प्रोलिफरेटिव फेज. प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होगा, सिर्फ माइटोसिस होगी. इनिशियली हमारे पास क्या प्रेजेंट है, जेनाइटल रीजेस एंड नाउ वी कॉल देम एज द गोनोसाइड. ये जो गोनोसाइड्स है ये 6 codes में incorporated रहते हैं during the gestation period, and finally these 6 codes it will converted into the seminiferous tubule where the process of spermatogenesis will take place after the puberty. Differentiate, they will divide mitotically and form new cells called as the type AS spermatogonia. AS spermatogonia का मतलब है इनको हम बोलते हैं ट्रू स्टेम सेल्स. एक जनरल से एग्जाम्पल भी है, इनको हम स्टेम सेल्स क्यों बोलते हैं. देयर वॉज अ एक्सपेरिमेंट जिसमें ये परफॉर्म किया गया, ये चेक किया गया कि ऐसे माइस जिनमें से अगर हम स्पर्मेटोगोनिया एब्सेंट है और दो माइस दे आर नॉट एबल टू undergo the process of spermatogenesis, if we will add these stem cells then they also start this process. So this AS spermatogonia they help to during the puberty. These cells again divide mitotically and form 2 type of the cells. One type is the type A1 spermatogonium और दूसरा जो ये बनाएंगे that is again type AS spermatogonium. यानी कि ये डिवाइड करके एक तो खुद की तरह सेम सेल्स स्टेम सेल्स बना रहे हैं, एक जो है न्यू तरह के सेल्स जो बन रहे हैं दैट इज़ द टाइप A1 स्पर्मेटोगोनिया, एंड दीज एग्जैक्टली अंडरगो द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस. A1 हाई लेवल ऑफ स्टैट A और स्टैट 8 क्या होता है, दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. सो देयर आर वेरी हाई लेवल ऑफ दिस TF in the type A1 spermatogonia, right? Then they form a connection cytoplasmic bridge by together with each other. Just I will show you this with the diagram. You can see here these are the different spermatogonia, and each spermatogonia they are linked with each other, just this small passage, small connection. These are basically the cytoplasmic bridges which will connect the different spermatogonia with the each other. Next point, we have the chains to 32 links in आया. उसमें इस तरह से आप क्लियरली देख सकते हो कि अलग अलग स्पर्मेटोगोनिया की ये चेन बनी हुई है, एंड अप्रॉक्सीमेटली 2 to 32 स्पर्मेटोगोनिया दे आर लिंक्ड विथ ईच अदर. नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन अंडरगो द 5 माइटोटिक डिविजन्स. जो आपके टाइप A1 स्पर्मेटोगोनिया होंगे इनमें पहले
फर्स्ट 5 माइटोटिक डिविजन्स होंगी एंड आफ्टर दैट दे विल गेट कन्वर्टेड इन टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया. नाउ दे विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ द meiosis because they are the last cell in the process of the mitosis. They are the precursor of spermatocytes. Now they will undergo the process of meiosis. तो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया जो है वो फर्दर माइटोसिस से डिवाइड करेंगे, एक बार प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे, और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है अब इसमें पहले मियोसिस स्पर्मेटिड. नाउ नेक्स्ट, this is we discuss about only the mitotic division, that how the sperm cell spermatogonium, the main stem cell, they will divide mitotically and they form the primary spermatocyte. अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ से आपका म्योसिस इट इज़ फर्दर मीडिएटेड बाय डिफरेंट फैक्टर्स. अलग अलग फैक्टर जो है इस म्योटिक फेज में हेल्प करेंगे. पहला आता है आपका रेटिनोइक एसिड which are secreted by the Sertoli cell. They will help in this regulation of meiosis phase. And that is bone morphogenetic protein which are secreted by spermatogonia. तो जब BMP8B एक पर्टिकुलर क्रिटिकल कंसंट्रेशन पॉइंट दे रखा होगा, when this BMP8B reaches that particular concentration point, the germ cells they will begin to differentiate. Means एक तरह से ये एक सिग्नल पॉइंट तक पहुंचेंगे. ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे जो जर्म सेल है वो प्रोलिफरेट करने शुरू हो जाएंगे. टाइप A1 स्पर्मेटोगोनियम बनेगा, देन टाइप B स्पर्मेटोगोनियम, एंड देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्मेशन विल अकर. Now this process includes some transition and changes between the spermatogonia and the formation of spermatocyte. ठीक है, जो आपके spermatogonia बन रहे हैं और mediated by some factors. That the two main factor here, one is the means stem cell factor. ये simply क्या करेगा, it will promote the transition to spermatocyte factor है, that is the GDNF. GDNF का मतलब है ग्लायल सेल लाइन derived neurotrophic factor. Now what will this factor do? It basically helps to determine whether the cells they will still remain in the spermatogonial form or should they get converted. ठीक है, सिंपल सी चीज़ है. ये जो फैक्टर है ये डिटरमिन करेगा कि जो हमारे सेल्स है स्पर्मेटोगोनियल सेल वो स्टिल डिवाइड करके अभी भी स्पर्मेटोगोनिया ही बनाते रहें, या फिर वो डिवाइड होके अपनी नेक्स्ट टाइप दैट इज टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट हो जाएं. देन दे विल फॉर्म द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. राइट, नाउ हाउ इट विल गेट डिसाइडेड, तो बेसिकली इनकी कंसंट्रेशन से ये चीज़ डिसाइड होती है. अगर GDNF का लेवल कम होगा देन इट विल फेवर्स द डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया. मीन्स सिंपल, GDNF अगर कम है तो नॉर्मली क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट बनना शुरू हो जाएंगे. बट इफ द लेवल्स ऑफ द GDNF आर हाई देन इट विल सिंपली फेवर ये स्पर्मेटोगोनिया वही माइटोटिकली सिर्फ दोबारा से वही बनते रहेंगे. So in this way this GDNF factor helps to determine that the cell have to divide or still they have to form the stem cells. Now these both the factors they are basically secreted by the Sertoli cells जिनको हम nourishing cell भी बोलते हैं या nurse cell भी बोलते हैं, and is basically upregulated by the FSH, that is follicle stimulating hormone. डिस्कस किया उसका एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में ओवरव्यू है कि सबसे पहले हमारे पास टाइप A स्पर्मेटोगोनिया है, दे फर्दर स्पर्मेटोगोनिया एंड फॉर्म द टाइप B स्पर्मेटोगोनिया. नाउ अगेन बाय माइटोसिस दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. देन at this stage the meiosis one will occur and it will form the secondary spermatocyte. Now the meiosis 2 will occur and the spermatid will be formed. They are basically haploid in their ploidy and still they are connected with their cytoplasmic bridges. Now ये जो सारा प्रोसेस है इस प्रोसेस में हम क्या देखते हैं कि जो स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है दैट इज़ टुवर्ड्स टू द ल्यूमन साइड. ठीक है, जैसे जैसे हमारे स्टेजेस नेक्स्ट हम जा रहे हैं स्टेजेस में देयर विल बी द मूव द सेल्स बेसल लामिना. ठीक है, आई एम शोइंग दिस यू विद द डायग्राम. स्पर्मेटोगोनिया, देन इनसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है,
then secondary spermatocyte, spermatid, and basically we are moving to the sides of the lumen side. ठीक है, यानी कि सेल फॉर्मेशन में हम बेसल लैमिना से दूर फाइनली ल्यूमन जो है वहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन, एक मेच्योर स्पर्म जो है हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन रीजन में देखने को मिलेंगे. दिस इज बेसिकली द टीएस ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. So this is the again a diagrammatical view of spermatogenesis process, where initially we have these type A spermatogonia. Either they can divide mitotically and mitotically type A1 spermatogonia, right? Then 5 mitotic division will occur and type B spermatogonia will form. But you can see here clearly they are still attached with this, and here the first meiosis will take place and one primary spermatocyte will form the pair of secondary spermatocytes. Now these secondary spermatocytes, they will undergo the meiosis 2, which is the equational division, and form the spermatids. Now still you can see that all these spermatids each other. ये जो cytoplasmic bridges हैं, they will get separated only when the sperm lumen region. Only at that point these sperms, they will get separated by these cytoplasmic bridges. Now next हम बात करेंगे हमारा थर्ड स्टेप के बारे में, that is the spermiogenesis, and it is इस प्रोसेस में हम देखेंगे कि कैसे एक spermatid it will get converted into spermatozoa. So you can see here जो हमारे spermatids हैं, they are still rounded. ठीक है, इनमें सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगी, बट एक्चुअल में स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लाइक दिस. सो दे आर नॉट नियर बाय ऑफ दिस एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्मेटोजोआ. ये पोस्ट मियोटिक फेज है, इसमें क्या होता है आपका, देयर इज कन्वर्जन ऑफ द नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड जो है वो एक फंक्शनल मोटाइल स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होगा, और इसी प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं. Now during this period, in this process, plasmic level, and during this period these spermatids, they will get embedded in the Sertoli cell for their nourishment, for their nutrient levels, right? अब हम देखेंगे क्या चेंजेस हो रहे हैं जिससे हमारा जो स्पर्मेटिड है that will getting converted into the spermatozoa. सो फर्स्टली न्यूक्लियस में चेंज आएगा. ठीक है, जो यूजुअली न्यूक्लियस प्रेजेंट है डाउन इन द सेंटर टोन टू मूव इट्स वाटर लेवल फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाज्म. जो क्रोमोसोम्स है दैट विल ऑल्सो गेट मोर क्लोजली पैक्ड. हमारी जितनी भी एसिडिक प्रोटीन या आरएनए प्रेजेंट है दैट विल गेट एलिमिनेटेड, एंड histone proteins, they are also replaced firstly by transitional protein, and finally they are replaced by the protamines. प्रोटामाइंस में यूजुअली सिस्टीन रेजिड्यूज प्रेजेंट होते हैं. सिस्टीन एक अमाइनो एसिड है कि रेजिड्यूज प्रेजेंट होते हैं, एंड स्पेशली यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट होता है इस अमाइनो रेजिड्यू में, तो ये ज़्यादा कम्पैक्ट बनाने में हेल्प करता है. And finally, now the nucleus, it will change from the spherical form to the elongated and narrow. Then after this acrosome formation takes place. ठीक है, right? We know that sperm के structure head के region के होंगे which will help to penetrate the egg during the process of fertilization. So now by Burgos and Fawcett, we will see that how this acrosome formation will take place. तो initially क्या होता है, ये जो acrosome है, अब इनिशियली लोअर क्लासेस में हम देखते हैं कि गोल्जी अपैरेटस फर्दर 3 कंपोनेंट का बना होता है, राइट. सो आउट ऑफ दैट जो सिस्टर्ने कंपोनेंट होता है गोल्जी अपैरेटस का, इट बेसिकली गेट अरेंज अराउंड द स्मॉल वैक्यूल्स. ठीक है, इस तरह से आप डायग्राम में देख सकते हो, इस तरह से वैक्यूल्स जो हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे, राइट. अब इन वैक्यूल में कुछ जो वैक्यूल्स हैं दे विल गेट स्टार्ट इनलार्जिंग, दे विल गेट इनलार्ज, और हर एक वैक्यूल के अंदर एक बॉडी अपीयर होने शुरू हो जाती है. इस बॉडी को हम बोल देते हैं प्रोएक्रोसोमल. सो यू कैन सी हियर दिस इज द गोल्जी कम्प्लेक्स नियर बाय कुछ, और यहाँ पे दिखाया गया है कि बीच में गेट प्रोएक्रोसोमल ग्रैन्यूल. नाउ नेक्स्ट जो जितने भी आसपास स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट है प्रोएक्रोसोमल ग्रैन्यूल बनने शुरू हो जाएगा. Now these small vacuoles,
they will fuse with each other and finally they will form the acrosome granule. और बाकी का जो एलिमेंट होगा गोल्जी कम्प्लेक्स का, दैट विल गेट रिमूव्ड, उसको हम गोल्जी रेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है. जितना भी वाटर कंटेंट होगा या बाकी जो और इसमें मटेरियल प्रेजेंट रहेगा, दैट गेट रिमूव्ड. नाउ दिस एक्रोसोमल ग्रैन्यूल ये शिफ्ट कर जाएगा एंड इट विल प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है. वहाँ यू कैन सी हियर these acrosomal granule, they get shifted to the side of the nucleus here, ठीक है. ये acrosomal granule है. Now the vacuole will release, ठीक है. आसपास जो गोल्जी apparatus में लिक्विड कंटेंट था, दैट विल ऑल्सो गेट रिलीज, और इस ग्रैन्यूल के बाहर इस तरह से ये एक शीट की फॉर्म में यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा. फाइनली इट विल फॉर्म द एक्रोसोमल कैप, ठीक है. ये एक्रोसोम ग्रैन्यूल जो है प्रॉपर एक्रोसोम बना देगा, और ये जो कवरिंग थी, ये जो बेसिकली जो लिक्विड सिक्रीट हुआ था वो इसको कवर कर देगा, जिसको हम अब ये पूरा एक एक्रोसोम बन चुका है. दैट विल बी प्रेजेंट एट द हेड ऑफ द स्पर्म एंड हियर द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स विल बी प्रेजेंट विच हेल्प टू पेनिट्रेट द स्पर्म ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन. के स्पर्म न्यूक्लियस, इस तरह से न्यूक्लियस प्रेजेंट है हेड रीजन में, बिल्कुल इसके नीचे जो है स्पर्म न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाएंगे. वन इज द प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एंड सेकेंड वन इज द डिस्टल सेंट्रियोल. जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है इट विल बी प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर पार्ट्स, ठीक है. जो ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसके पोस्टीरियर पार्ट में आपका प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होगा, और इसके जस्ट नीचे डिस्टल सेंट्रियोल होगा. जो आपका प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज इट विल हेल्प इन द स्पिंडल फॉर्मेशन, राइट. जैसे जाइगोट बना, फर्दर क्लीवेज होगी, जो भी स्पिंडल फॉर्मेशन होगी दैट विल बी टेक प्लेस बाय दिस प्रोक्सिमल सेंट्रियोल. और जो ये आपका डिस्टल सेंट्रियोल है, दिस डिस्टल सेंट्रियोल हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द टेल. जो फ्लैजेला फॉर्मेशन है, टेल फॉर्मेशन है, दैट विल बेसिकली विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्टल सेंट्रियोल. Next is the forecornea that will get accumulated in the middle portion and it will get spirally coiled and form a sheet-like covering. We call it as the Naban-kern, ठीक है. तो जो sperm के स्ट्रक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट होता है उसे हम बेसिकली Naban-kern बोलते हैं. Then the formation of the manchete. Manchete is the name of the covering. जैसे ही साइटोप्लाज्म जो है स्पर्मेटिड का that will get loose out, some parts still get condensed and form a covering around the acrosome, and this covering is basically a layer and we call it as the manchete. And form the tubular structure that is the exoneme, and finally इस exoneme के around cytoplasmic sheath present होगी and this together will form the tail of the sperm. So जो formation of tail है that is basically by the distal. So you see here in the diagram that we have initially that है जी apparatus पे है, nucleus will be present and centrioles are present. तो centrioles जो हैं वो अभी मैंने आपको बता दिया, एक टेल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा और दूसरा जो है वो क्लीवेज के टाइम यूज़ होगा, ठीक है. देन यहाँ पे आप देख सकते हो ये गोल्जी apparatus दिस स्पर्मेटिड, दिस विल फॉर्म द एक्रोसोम वेसिकल. प्रोसेस अभी हमने डिस्कस कर लिया कैसे. एंड द ऑल द साइटोप्लाज्म इट विल गेट ओजेज आउट. इस तरह साइटोप्लाज्म है इकट्ठा हो जाएगा एंड फाइनली गेट ओजेज आउट सो दैट द प्रॉपर structure of the sperm will get attained, and simultaneously mitochondria है that will get arranged into the center in a spiral. We can see here the mitochondrial sheet is formed in the center of the. Last we have the tail where the flagellum will present which help the sperm to swim in the female reproductive tract. So finally after the spermatogenesis or the spermiogenesis we will have this structure of the sperm. So this was your topic, that is the spermatogenesis. We saw that the from how a spermatogonia get converted into this mature sperm.